Hello class 9th. See, I am in front of you. Today I'll teach you that how to do the question that is related to remainder and factor theorem. I am repeating myself. The question that is related to remainder and factor theorem. This concept is belonging to the chapter polynomial of mathematics. I am Pawan sir and I will try to explain the whole concept through the one question. If you will focus properly on the solution, on the process as I am teaching you, this is my guarantee. In 10 minutes you are going to learn the remainder and factor theorem and of course the toughest question of this concept. See how. तो बच्चा लोग, there is a question. If ax cube plus bx square plus x minus 6 has x plus 2 as a factor, leaves a remainder 4 when divided by x minus 2. Find the value of a and b. Before understanding about the solution of this concept, I want to suggest you one thing. You must learn if here is px is equal to 2x square minus 7x plus 5, then you must know that how to find out the value of p1, how to find out the value of p2. You don't have to do anything special, only you have to put the value of x in the given polynomial. Px means polynomial in the form of x. So you will put x is equal to 2. So that will be 2 multiple 2 of square minus 7 multiple 2 plus 5. That is 2 of square will be 4. 4 2s are 8 will be here minus 14 plus 5. Now this is 8 plus 5. That is 13 minus 14 and that is minus common. So this is the value of P2. With the help of this concept, I want to tell you one thing more important to you. That is, if x is equal to 2, if x is equal to 2, it means when if x is equal to 2 or x minus 2 is equal to 0. So when px is divided by x minus 2, when px is divided by x minus 2, so whatever will be the value of p2, that will be considered as remainder. That will be considered as remainder. And if it were 0, if that p2 was 0, so it will be told that when this is divided by x minus 2, we are going to get p2 as, where we are going to get 0 as remainder. या फिर दूसरी लैंग्वेज में अगर रिमाइंडर 0 है तो हम ये भी कह सकते हैं कि as p2 is equal to 0, so x minus 2 is a factor of this one or 2 is the 0 of this one. क्या क्या सीखा हमने कि अगर कोई वैल्यू रखने पर आंसर 0 आ जाए, आंसर 0 है नहीं, लेकिन अगर आंसर 0 आ जाए तो 2x की जिस वैल्यू के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, दैट इज नोन एज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. x से कंपेयर करने पे जो एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल निकल के आता है, दैट इज नोन एज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल इफ द रिमाइंडर इज 0. It is a little bit concept for that. It is all. Remainder and factor theorem is nothing but the concept to find out the remainder when a given polynomial is divided by another polynomial or when a given polynomial is divided by another polynomial, and we have to check whether the given second polynomial is the factor of first polynomial or not. I am repeating myself again. रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हम रिमाइंडर पता करते हैं जब कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल किसी छोटे से पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है तो हमें रिमाइंडर पता लग जाता है. वो जो रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है. लेकिन फैक्टर थ्योरम में हमें यह पता करना होता है कि अगर कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल किसी छोटे से पॉलिनोमियल से डिवाइड हो रहा है तो वो उसका डिवाइड कर रहे हैं तो वो उसका फैक्टर है या नहीं है. तो अगर आपको फैक्टर चेक करना है तो उसके लिए आपने वही सेम सिस्टम लगाना होता है कि वो उसकी वैल्यू यहां पे रखते हैं, p2 की वैल्यू निकालते हैं, p-2 की वैल्यू निकालते हैं, जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है. अगर 0 आता है तो x माइनस 2 उसका फैक्टर है, 0 नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं है. आओ एक क्वेश्चन से करके देखते हैं. तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास था, इसमें कॉन्सेप्ट दिया है. अब मैं क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करता हूं, हल्का सा सोचना कि अगर ये पॉलिनोमियल
हमको चेक करना है, मतलब बताना है कि ये पॉलिनोमियल इसका अगर फैक्टर है, यानी उसने पहले ही क्लियर कर दिया, प्रूव नहीं करना है। अगर आपको ये प्रूव करना होता ये इसका फैक्टर है कि नहीं पता करो, तो आप लिखते x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। आप क्या लिखते हैं, x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू माइनस टू। अब अगर आपको ये पता करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो आपने कुछ नहीं करना है, केवल p माइनस टू, जैसे यहां p2 निकालना है, सेम हियर p माइनस टू की वैल्यू निकाल लेनी है। p माइनस टू की वैल्यू अगर जीरो आ जाएगी तो x माइनस टू, x प्लस टू इसका फैक्टर होगा। जीरो नहीं आएगी, कुछ और आएगी, तो वो फैक्टर उसका नहीं है, और जो आंसर आया है वो रिमाइंडर है जब x प्लस टू इसको डिवाइड करेगा। इतना समझ में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को लेके आते हैं, उसमें दो कॉन्सेप्ट दिए गए। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये भाई साहब इसके फैक्टर हैं, पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरी चीज ये है कि 4 हमको रिमाइंडर मिलता है जब ये दूसरा वाला पॉलिनोमियल x माइनस टू इसको डिवाइड करता है। एक पॉलिनोमियल दो अलग अलग छोटे छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है। जब डिवाइड होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तभी तो रिमाइंडर जीरो आएगा। और अगर रिमाइंडर जीरो आएगा, इसका मतलब हमने बताया ना, रिमाइंडर क्या होता है, जो P2 की वैल्यू, जो P माइनस टू की वैल्यू, जो P3 की वैल्यू होती है, वही रिमाइंडर होता है। तो अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो। कौन फैक्टर है, ये तो थ्योरम, फैक्टर थ्योरम हम लगाने जा रहे हैं कि px इज इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल गिवन, हमने इसको लेट कर लिया कि लेट px इज इक्वल टू इतना। अब फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट चलने जा रहा है, तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस टू। अच्छा, अगर x प्लस टू फैक्टर है px का, तो p माइनस टू की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले बोला। p माइनस टू की आपने वैल्यू निकाली, a इंटू ये है ना माइनस टू का क्यूब प्लस b माइनस टू ऑफ स्क्वायर माइनस टू माइनस सिक्स, और शुड बी इक्वल टू जीरो। देखो इक्वल के नीचे इक्वल, जीरो के जीरो, और ये p माइनस टू की वैल्यू ये है। ये जो इतनी बड़ी बेटा वैल्यू आई है, ये p माइनस टू की वैल्यू है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। माइनस टू का क्यूब विल बी माइनस का 8। कैसे, माइनस टू मल्टीपल माइनस टू मल्टीपल माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, दैट इज माइनस का 8। तो a माइनस 8 माइनस टू ऑफ स्क्वायर विल बी माइनस टू मल्टीपल माइनस टू, दैट इज 4, तो 4b एंड माइनस का 8, माइनस टू माइनस का 8। This minus 8 will be transferred to that side. This is plus 8 and this is minus 8 plus 4b is equal to 8. Dividing the whole equation by 4. हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही आप पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे, you will get माइनस का 2a प्लस का b is equal to 2. Is it or not? यहां तक कंफर्म करो पहले। Then b is equal to, ये माइनस का 2a उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो प्लस का 2a हो जाएगा। तो b is equal to आ गया 2 प्लस 2a। ठीक, तो ये हमने फैक्टर थ्योरम से ये कॉन्सेप्ट निकाला कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा। यही फैक्टर थ्योरम है कि अगर आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो फैक्टर है तो उसके लिए P2 की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अच्छा सुनो, अगर प्रूव करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है, वेरीफाई करना है, तो आपको यहां एक और जीरो दिखना नहीं पड़ेगा। आप p माइनस टू की वैल्यू निकालेंगे, जैसे मैंने यहां निकाली है। अगर रिमाइंडर जीरो आएगा तभी वो उसका फैक्टर है। लेकिन यहां पे चूंकि उसने पहले ही कह दिया था ये इसका फैक्टर है, इसलिए हमने क्लियर कर दिया कि अगर फैक्टर है तो p माइनस टू की वैल्यू जीरो आएगी। कोई इसको बीच में रोकने वाला नहीं है, आप भी नहीं। ठीक है, तो हमने इसको निकाला b इक्वल टू b इक्वल टू 2 प्लस 2 हो गया। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट, तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है कि रिमाइंडर थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन द बिगर पॉलिनोमियल इज बीइंग डिवाइडेड बाय अ छोटा पॉलिनोमियल। तो वो छोटी पॉलिनोमियल x माइनस टू है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई, 2। अच्छा, तो अगर ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल छोटे वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा, तो जो रिमाइंडर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, P2। अब P2 की वैल्यू निकालेंगे भाई, रिमाइंडर होगा। लेकिन यहां तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ना कि जब ये x माइनस टू इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या फेंकेगा, 4 फेंकेगा। तो इसका मतलब कि जो P2 है यही तो रिमाइंडर था, ये हमारा 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे सेम प्रोसेस से जैसे मैंने ऊपर बताया है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 8a प्लस 4b इक्वल टू 8 आ जाएगी। हमने 4 से फिर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो 2a प्लस b इक्वल टू 2 हो जाएगा। कंफर्म है ना, वेरी गुड। तो अब उसके बाद हमने क्या किया कि b की वैल्यू यहां से प्लेस कर दी। लेट पुट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और यहां पे आपने b की वैल्यू प्लेस की है। यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b की वैल्यू हमने यहां पे रख दी।
तो जैसे b की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, तो ये हमारा आ गया 2a और 2a 4a, और ये 2 का ट्रांसफर हो गया, तो 2 - 2 हो गया 0, तो 4a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू ऑल्सो 0, क्योंकि 4 भाई नीचे अपॉन में जाएगा, तो 0/4, तो क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। अच्छा, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, आप यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो b इक्वल टू कितना हो गया, 2 + 2 × 0 दैट इज 2। तो इस तरह से आंसर आपका आ गया a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 0। एज I am habitual to do so. In case if there is any doubt, so you may contact on my WhatsApp number, that is 9235479880 without any hesitation. Myself Pawan sir, नाम तो सुना ही होगा ना। फिर भी नहीं, मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दिस इज योर विश। अगर आपको लगता है किसी दूसरे का भला हो सकता है, पवन सर ने मेहनत की है, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दिस इज बेनिफिशियल फॉर मी, इट विल प्रमोट मी टू मेक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।